we both did a mistake. और मेरे ख्याल से हमने कुछ गलती कर दी है. The thing is, after the service, we stopped for butter chicken, और सभा के बाद जो है हम लोग एक जगह पे रुके बटर चिकन के लिए खाने के लिए. and the butter chicken has killed our life और in a good way. एक अच्छे तरीके से. So after having butter chicken, you just want to go back and sleep. और बटर चिकन खाने के बाद हमें बस जाना है और सोना है. Is that right with everybody? क्या ये सही बात है? खाना खाने के बाद नींद How आती many है. of you have this habit? After having food, you need sleep. कितने लोगों की आदत है कि खाना खाने के बाद सोने की आदत है? You all will make it to heaven आप सभी लोग स्वर्ग जाएंगे. with me. Okay, just kidding. And some of them, I don't know, some of them have this habit, even though they sleep. They have their lunch, but they'll make sure that they can stay awake. I cannot do that actually. और कुछ लोग जो है इस बात का निश्चय करते हैं कि भोजन करने के बाद भी वो जो है जागते हैं, वो जानबूझकर जागते हैं, लेकिन मेरे बस की नहीं है वो. But I need a power nap. लेकिन मेरे को पावर नैप की जरूरत At होती least है. I need to just put my head down for 2 minutes, and it brings a lot of change in me. और actually. कम से कम ऐसे आंख बंद करके मेरे को 2 मिनट रेस्ट करना पड़ता है, तो वापस ताकत आती है, जान सी आती है Let अंदर. me ask you some questions. How many of you are early morning people who wake up early morning? और एक सवाल करना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग जल्दी उठते हैं? Now don't सुबह. tell me 10 a.m. is early morning for अब ये you. मत बोलना कि सुबह 10 बजे है वो जल्दी उठना होता है. 5 o'clock. 5 6 बजे कौन 6 कौन o'clock, उठता है? okay, 6 बजे कौन great. कौन उठता है? Okay, how many of you wake up? You can stay awake late night. और रात में कौन जग सकता है? रात तक लेट नाइट कौन कौन जग सकता So है? sister, we can arrange night prayer for them actually. Yeah, you can arrange a night prayer for them. और आप रात्रि की प्रार्थना इन सब के लिए आयोजन कर सकते We हैं. are good to come for afternoon meetings. और हम actually. जो है ऐसी सभाओं में भाग ले लेंगे. Okay, I'm thankful to God that this is the month of June, and God has been so good to us, protecting us from Jan, Feb, March. Smile, he's taking a picture. Jan, Feb, March, April, May. 5 months. और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस महीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन 5 महीने हमें संभाला है. Some of you, when you started January, you were not having a clue how you are going to sail. But thank God we are alive in Jesus' name. और जब हमने जनवरी का महीना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें चलाया है. If you are part of a school, you were super religious, praying for your board exam or your final exams, and thank God we have crossed all the storms. और अगर आप स्कूल में हैं तो आप अपना बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन इन सब को अब हम पार कर चुके हैं. Because I'm a teacher at a school, मैं स्कूल में टीचर हूं, तो for me 2 years, two places are New Year for me. और 2 जगह पे स्कूल में जो है न्यू ईयर होता है मेरे लिए. For me, January 1st is a New Year, just like everybody. सबके लिए जैसे जनवरी का पहला दिन जो होता है, पहला दिन वो सबके लिए न्यू ईयर होता है. And then April 2nd, when the school starts, that's a New Year for me again. और फिर अप्रैल जो फिर से शुरुआत होती है स्कूल की, तो वो जो दिन है वो मेरे लिए दूसरा न्यू ईयर होता But I है. realized every day is a new season in our life. लेकिन एक बात को मैंने जाना कि प्रतिदिन जो है हमारे जीवन में एक नया दिन है. Okay, this afternoon I am so excited to talk on this particular topic. और इस दोपहर के समय में इस शीर्षक के ऊपर बात करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ. Now please understand, this is a youth meeting. और समझिए कि ये जवानों की सभा है. I'm going to ask you honest questions. और मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, सच्ची सवाल करूँगा मैं. How many of you don't like money? आप में से कितने लोगों को पैसा नहीं पसंद? Okay, so that's the right topic we've taken. Okay. How many of you think that money is okay? और आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, पैसा तो होना चाहिए, ठीक Earning है. money is not at all wrong. पैसा कमाना गलत बात नहीं है. बाकी सब? Earning money is okay. पैसा कमाना गलत बात नहीं है. See, I कौन tell you, बोलता है? earning money is absolutely okay. देखिए, पैसा कमाना बिल्कुल ठीक बात है. If you don't earn money, how will you give a gift on my birthday? देखिए, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो मेरे जन्मदिन पे आप तोहफा कैसे So दोगे? earning money is absolutely okay. तो पैसा कमाना बिल्कुल ठीक बात है. But the Bible says the love of money is the root cause of all evil. लेकिन जो है वचन बताती है कि जो पैसे का जो लालच है वो सारे परेशानियों का जड़ है. When you definitely everybody will get into a time where you will feel like, should I go for that particular work or should I go for that prayer meeting? If I go for work, I will get extra 2 rupees. Just kidding, okay? Extra 5,000 rupees. But then if I go for, but you know what? If I go for the work, I can get that money and put it. See, everything is said. But the point is,
where is your heart? देखिए सबके जीवन में ऐसा एक समय आता है जब एक जगह जो है प्रार्थना हो रही होती है और दूसरी जगह जो है आपको काम पर जाना पड़ता है, लेकिन आप सोचते हैं कि क्या मैं काम पे जाऊं, अगर काम पे जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा और मैं पैसे को जो है इस्तेमाल कर सकता हूं उस सेवकाई के लिए, लेकिन आप जो है निर्णय लीजिए कि आपको कहां पर जाना है। It is all, what matters is your heart. देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके हृदय में क्या चल रहा And one है। of the things that I keep telling most of my people is don't let money control your life. देखिए मेरे जवानों को जो है मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ मेरी कलीसिया में कि जो पैसा है उसको अनुमति ना दें कि वो आपको कंट्रोल करे। Don't let those people control your life. वो जो लोग हैं, दूसरे लोग जो है वो आपको कंट्रोल ना करें। Especially when people get married. जब विशेषकर जब लोगों की शादी हो जाती है, One of the things that they come and ask is, what advice would you like to give? They come and ask, what advice would you like to give? तो जब शादी हो जाती है तो लोग नहीं, आके होने से पहले जो है लोग आके पूछते हैं कि शादी के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे। And my simple advice is, guys, listen, don't overdo your wedding. Overdo your wedding. जो है मैं उनको बहुत ही सरल रीति से बताता हूँ कि तुम्हारी शादी जो है बहुत ज्यादा धूमधाम से ना करो The तुम। thing is, you need to know what's your budget and make sure that you hold on to that budget. आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है और उसी बजट में आप शादी कराएं। And I've known people who overshoot and then still after 8 years they're paying their loan. देखिए अब कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बहुत ज्यादा कर देते हैं अपनी शादी में और अभी तक 8 साल हो चुके हैं, अभी भी जो है वो लोन ही भर रहे And हैं। for 8 years they've not been able to enjoy anything in life. तो 8 साल तक वो जो है अपने जीवन में किसी चीज का मजा नहीं ले पाए। I mean, फिर I know everybody wants that glamour and attention. That's great. Praise God. I support you. But just be very careful. That's what I tell them. देखिए हाँ मुझे पता है कि सबको जो है आकर्षण करना बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को जो है अटेंशन देना अच्छा लगता है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो है चीजों को ज्यादा ना करें We're अपने going to जीवन read a में। passage, and today I want to talk about how to be a cheerful giver. और फिर जो है आज एक वचन को हम पढ़ेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्साह के साथ आप कैसे दे सकते हैं You know, परमेश्वर we को। are so cheerful about so many things. हम जो है हमारे जीवन में बहुत उत्साहित हैं बहुत सारे अलग अलग चीजों को When लेकर। you clear your exam, you're cheerful. जब आप अपना परीक्षा क्लियर कर देते हैं तो तब आप उत्साहित When होते your हैं। boss looks at you and says, "Good job," you're cheerful. जब आपका जो मालिक है आपको देखकर कहता है कि बहुत अच्छा काम किया, तो तब आप खुश हो जाते हैं, आप उत्साहित हो जाते When हैं। your girlfriend gives you a gift, not cheerful. That's unholy. Okay, I'm just kidding. Your friends give you a gift, you're cheerful. जब आपके मित्र आपको जो है तोहफा देते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। When your parents give you iPhone 14, that's a dream come true. Cheerful moment. जब आपके माता पिता आपको आईफोन 14 दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, तो आपको और भी ज्यादा And खुशी हो some of जाती you है। are saying in your heart, ये तो कभी नहीं होगा, all right? But I understand, all right? No. I mean, it's okay to have some hope, all right? One of the things that I want to talk about is how to be a cheerful giver. देखिए एक बात जिस पे मैं बात करना चाहूंगा आज कि हम कैसे उत्साह के साथ परमेश्वर को दे सकते हैं। It's very difficult when it comes to giving to God. जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो बहुत ही मुश्किल होता है। You know, me being a pastor's kid, और मैं पासबान का बेटा हूँ। yeah, है, ठीक है, okay. All right, as a kid, जब मैं छोटा था I used to see people putting 10 rupees फटा हुआ note, 5 rupees फटा हुआ note. I'm like, okay, why are they doing this? तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि दशवांश में या भेंट में जो है 10 रुपए का फटा हुआ नोट, 5 रुपए का फटा हुआ नोट आता था। And I used to wonder, I mean, later I was like, oh my goodness, real cheerful givers. और फिर महसूस होता कि अच्छा ठीक है, सचमुच में जो है वो दे रहे हैं वो। Think how many of you get excited when it comes to giving? देखिए सोच के देखिए, याद कीजिए कि आप में से कितने लोग जो है उत्साहित होते हैं जब ये देने की बात आती My है। friend, today I'm not talking about anointing. देखिए आज जो है मैं अनॉइंटिंग के बारे में बात नहीं I'm कर not रहा, talking about talents. मैं जो है गुण टैलेंट्स के बारे में बात नहीं कर I'm रहा, not talking about your gifting. मैं आपके गिफ्टिंग के बारे में बात नहीं I'm कर going to रहा, straight talk to you about money. मैं आज के दिन आपसे पैसे की बात करने Is वाला that हूँ। right? क्या ये सही बात Okay, है? so the Bible says, be a cheerful giver. वचन बताती है कि उत्साह के साथ, खुशी के साथ देना I want सीखें। you to turn to your Bibles to 2 Corinthians chapter 9. मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को खोलें, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। Okay, everybody, let's turn 2 Corinthians chapter 9, verses 1 and 2. Yeah, 2 Corinthians chapter 9. It says, I really don't need to write to you about this ministry of giving for the believers in Jerusalem. अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं। Okay, for I know how eager you are to help and have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. और दूसरा वचन कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं कि अख्या के लोग एक वर्ष
से तैयार हुए हैं। In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। Okay, Paul, let's understand the context here. यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। Paul is writing to the Corinthians, और जो पौलुस है वो कुरिन्थियों के लोगों को एक पत्र खत लिख रहे and हैं he's bragging about the Corinthian church. और कुरिन्थियों के कलीसिया के बारे में घमंड से लोगों को बता रहे Because हैं, these people were very good in giving. क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से परमेश्वर को देते हैं। And then he says, hey, listen, when I went and shared about your giving to the Macedonians, some of them were so energetic, they got enthusiastic to give more. और वो कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारे बारे में मकिदुनिया के लोगों को अख्या में जाके बोला तो वो लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुए। If you read verse number 1 very carefully, और अगर आप पहला वचन अगर आप ध्यान से पढ़ें, Paul says, I really don't need to write to you about this ministry of giving for the believers in Jerusalem. और यहाँ पे लिखा है कि अब सेवा के विषय में पवित्र लोगों के लिए जाती है कि मैं तुमको लिखना आवश्यक तो नहीं है। Paul says in other words, hey, I don't have to write to you about giving. वो बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कह रहे हैं कि जरूरत तो नहीं कि मैं इस बात को तुमको लिख के दिखाऊं। But then there's something that's very interesting to highlight here. लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक रोमांचक बात है। You know, there's a ministry called giving also. देखिए एक ऐसी सेवकाई भी है जहाँ पे तुम्हें देना होता We है। have heard about Sunday school ministry. हमने संडे स्कूल की सेवकाई के बारे में सुना है। My friend here is doing media ministry. यहाँ पे मेरा भाई मीडिया मिनिस्ट्री कर रहा है। Behind me, five minutes back, we had worship ministry. और 5 मिनट पहले जो है आराधना का कुल था वो भी एक सेवकाई है। Right now, what we are doing as a youth ministry. तो अभी हम चला रहे हैं ये जवानों की सभा And then we सेवकाई have है deliverance ministry. और उसके बाद छुटकारे की सेवकाई है You name it, there's so many ministries out there. और बहुत सारे अलग अलग Yeah. प्रकार की We सेवकाई have है। women's ministry, men's ministry, okay, kids ministry. I did mention Sunday school, college ministry. So many ministries, and one ministry is called the ministry of giving. देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सेवकाई है और ऐसा भी एक सेवकाई है जहां पे हमें परमेश्वर को देना होता I want है। to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, The money that you have, जो पैसा धन आपके पास है it's not really yours. वो आपका खुद का नहीं है। Yeah, अच्छा, ठीक है, ये गलत चीज बोल दिया। Okay, all right. Actually, it is not yours. सचमुच में वो आपका नहीं है। You know, there is a giver who had given you the ability to earn money. देखिए कोई ऐसा है जो आपको इस लायक बनाता है कि आप उस चीज को हासिल करें। Hey Daniel, but I have brains. It is my skill. Hey, listen. If God did not give you brains, what would have happened? देखिए अगर आप बोलेंगे कि भाई डैनियल भाई मेरे पास दिमाग है तो दिमाग को रख के मैंने किया, लेकिन एक बात को जाने कि जिस परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया अगर वो परमेश्वर आपको नहीं देता दिमाग तो आप क्या करते? You might say that I have a skill, I have a talent, but God gave you the health to build that talent and skill. मेरे पास अनुभव है, मेरे पास टैलेंट है, अगर परमेश्वर ने मदद की है तुम्हारी उन सबको और भी उभर कर बाहर लाने में। So Paul says there's a ministry called giving also. और पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि एक ऐसी भी सेवकाई है जहां पर आपको देना And I पड़ता want है। to tell you that you don't have to sit and think where to give, what will they do with it. That is not our job. देखिए आपको ये नहीं सोचना कि इस पैसे के साथ वो लोग क्या करेंगे, कहां जाएगा, क्या करेंगे, इससे हमें मतलब नहीं Let me है। put the 1 rupee that I put, let me put a GPS attached to it and see where the money, come on, that is not our job देखिए actually. ये हमारा काम नहीं है कि इसके साथ जीपीएस में लगा के देखता हूँ कि ये पैसा कहाँ जाता है, नहीं ये हमारा काम नहीं है। Our job is to give. हमारा काम है सिर्फ देना। When you give, God honors that. और जब आप इस परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर इस चीज को But आदर then करता I know है। about that ministry. लेकिन आप कहेंगे कि अरे मैं तो जानता हूँ उनकी I सेवकाई know के about बारे that pastor. में, मैं उस पासवान के बारे में जानता हूँ। Great, if you know, that's a good additional information for you. अच्छी बात है अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो। Pray and give. प्रार्थना कीजिए और फिर दीजिए। You know, when you give, it is so much rewarding. देखिए जब आप देते हैं तो उसका जो है एक आशीष और एक रिवॉर्ड होता Some है। of us, we love to give our time. कुछ लोगों को अपना समय दूसरों को देना अच्छा Some लगता of us, है। we love to give our talent. कुछ लोगों को अपना टैलेंट देना अच्छा लगता Some of है। us, we love to give our strength. कुछ लोगों को अपना बल देना अच्छा लगता है। But when it comes to giving, it's like, hey, that is the problem. You need to give that spot also. लेकिन जब परमेश्वर के लिए देने की बात आती है तो वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है। I've seen so many rich people मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा है who are absolutely कंजूस people. जो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। Absolutely. I mean, that's the heights of कंजूसी also. हद होती है कंजूसी की, वो उसको भी पार कर देते हैं। And I've seen some simple people और मैंने बहुत ही सरल लोगों को भी देखा who है are very generous. जो कि बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं। Yeah, absolutely. And I've seen some people who are always sitting and calculating. Yeah. I'm like, come on, forget math sometimes. It's और okay. कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो हमेशा बैठ के हिसाब लगाते रहते हैं। Don't say that's my daddy, okay? All right. Okay, so Paul writes to the people of
Corinthians about giving. और पौलुस जो है यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को जो है ये खत लिखते हैं And he says that your giving has stirred up so many people in other church. और ये कहते हैं पौलुस कि तुम्हारा जो देना है परमेश्वर को वो दूसरे लोगों को और भी उत्साहित कर रहा है It has stirred up enthusiasm in Macedonian believers. और मकिदुनिया के लोगों के मन में एक उत्साह को उत्पन्न किया है See, people of Corinth are giving, देखिए कुरिन्थियों की जो कलीसिया है वो दे रही है परमेश्वर and को their testimony has reached the Macedonians that they have also given more. और जो गवाही है ये मकिदुनिया के लोगों तक पहुंच चुकी है कि वहां के जो लोग हैं वो भी दे रहे हैं परमेश्वर को You know, I know in my church I've got some people देखिए हमारे कलीसिया में मुझे पता है कुछ लोगों को मैं जानता हूं who give beyond. देखिए अपनी सीमा से पार होकर बढ़कर वो देते The हैं Bible says 10%, but they just give beyond because they have tasted, okay, the blessing that they received through their finance. वो जो 10 वचन बताती है कि 10% देना है लेकिन उससे भी बढ़कर वो देते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को चखा है आशीष को चखा I want है to challenge you, some of you, if you want a financial breakthrough, you better start giving. देखिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं अगर आप एक आर्थिक आशीष को ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप परमेश्वर को देना Very सीखिए simple biblical principles: you sow, you reap. देखिए वचन के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो वचन बताती है कि तुम बोगे तो तुम काटोगे If you sow, I'm saying rabbit. If you sow a carrot, you will not reap beans. देखिए अगर आप कैरेट बोते हैं तो आप बीन्स को नहीं काटोगे In the same way, if you sow money, you will reap money. तो Actually, अगर आप पैसे को बोगे तो आप पैसे को ही काटोगे I mean, don't make it too spiritual. It's very simple. देखिए इसको ज्यादा आत्मिक रीति से मत लीजिए बहुत ही सरल बात है ये Certain things are written very simple and clear. वचन में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी है तो बहुत ही सरल रीति से बताई गई Okay, है let's read verse number 3. और तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे He says, "But I'm sending these brothers to be sure you really are ready, as I have been telling them, and that your money is all collected. I don't want to be wrong in my boasting about you. We would be embarrassed not to mention your embarrassment if some Macedonian believers came with me and found out that you weren't ready after all I had told them." Verse number 5. "So I thought I should send these brothers ahead of me to make sure the gift you promised is ready, but I wanted to be a willing gift, not a given grudgingly." तीसरा वचन इस प्रकार कहता है कि परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार हो रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकिदुनिया मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो क्या जाने, इस भरोसे के कारण हम लज्जित हों। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारे उदारता का फल जिस के विषय में पहले ही वचन दिया गया था तैयार कर रखे कि वह दबाव में नहीं परंतु उदारता के फल की नाय तैयार हो। So in other words, Paul is trying to tell the people of Corinthians, और कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस इस प्रकार कह रहे हैं, I'm sending few of my brothers to check on you, मैं जो हूं मकिदुनिया के कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, so that I want to make sure that you're giving cheerfully, you're giving happily, not grudgingly. और मैं इस बात का निश्चय करना चाहता हूं कि तुम जो है एक उदारता के साथ खुशी के साथ दे रहे हो, ना कि कोई कड़वाहट को अपने मन में रखकर। Okay, can we read verse number 6, 7, 8 together? क्या हम साथ में 6, 7 और 8वां वचन पढ़ Okay, सकते let's हैं? read it together. 6, 7, 8 together. साथ में पढ़ेंगे 6, 7वां और 8वां वचन। Okay, at the count of 3. 1, 2, 3. Remember this of... Okay, continue please. Let's read it together. 6. Okay, 1, 2, 3. Remember this, a farmer who... Okay, so I'm going to ask Deborah to read it loudly so that others can also get the context. और 6, 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने है वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ाकर।
और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. The Bible says here, for God loves a person who gives cheerfully. और यहाँ पे वचन लिखा है कि परमेश्वर जो है उनसे बहुत प्रेम करता है जो बहुतायत से देते हैं। God loves a cheerful giver. परमेश्वर जो है उदारता से जो देते हैं उससे प्रेम करते हैं। Now, it's not like when God is talking about, when Paul is talking about cheerful giver, he's not talking about your talents, not talking about your skill, but we are talking about your money here. जब देने की बात आती है तो वो तुम्हारे टैलेंट के बारे में नहीं, तुम्हारे गुण के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ पे पैसे के बारे में बात हो रही है। पौलुस बात बताते And हैं, Paul says God loves a cheerful giver. और पौलुस बताते हैं कि जो उदारता से देता है परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। How many of you are earning? और आप में से कितने लोग कमा रहे हैं, नौकरी करते हैं? 4 lakhs, 5 lakhs. 5 लाख महीने में। All right. And then some of you are very soon going to earn. और आप में से कुछ लोग जो है बहुत जल्द नौकरी करने वाले हैं। I work. मैं काम करता हूँ, I work in a school. मैं स्कूल में काम करता As हूँ, soon as my salary comes, the first thing that runs to my mind is I need to keep the tithe और separately. जैसे ही मेरी तनख्वाह आती है सबसे पहले मेरे जहन में ये बात आती है कि मुझे परमेश्वर का जो हिस्सा है उसको अलग करके रखना है। And make sure that every Sunday that you give your tithe, you give your offering, let it not be a routine. Oh my goodness, offering time aa gaya, bhago, you know. Hey, it should be a cheerful thing. देखिए, जैसे ही ये एक आदत बना लो कि हर हफ्ते जो है आप परमेश्वर को देते हैं। जैसे ही रविवार का समय आता है आप पूरे दर्द के साथ नहीं किया है, देना पड़ेगा, लेकिन खुशी के साथ, उदारता के साथ देना सीखिए। What is the meaning of cheerful giver? देखिए, उदारता के साथ देने का मतलब When क्या a है? volunteer is passing the offering box and he misses you, catch the shirt and say, "Give me the basket." That's a sign of a cheerful giver. देखिए, चेयरफुल उदारता से देने का मतलब क्या है? अगर कोई वॉलंटियर आपको बकेट देने से चूक जाता है तो उसका कॉलर पकड़े, खींच के बोले कि मुझे भी देना है, मुझे भी दो बास्केट। We never do that. Oh, praise God! God has answered our prayer. Amen. लेकिन हम ऐसे नहीं करते। हम तो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, बच गए, छोड़ो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। Every time you get a chance to put money, make sure that you are a cheerful giver. देखिए, जब भी आपको मौका मिलता है परमेश्वर को देने के लिए, उस बात से चूके ना, परमेश्वर को दीजिए। Hey, God knows your financial condition. देखिए, परमेश्वर आपकी आर्थिक परिस्थिति को जानता है। God knows your story very well. परमेश्वर आपकी कहानी को जानता है। And in midst of everything, if the basket is moving towards your direction, just be bold. Lord, I'm just trusting you. You will do something about और इन it. सब के बीच में भी अगर वो बास्केट आपके पास आ रहा होता है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मेरी परिस्थिति को जानते हैं और आप परमेश्वर को दीजिए। Amen. Why should I be a cheerful giver? 2 points. मुझे क्यों परमेश्वर को उदारता से देना चाहिए? Or how can I be a cheerful और मैं giver? कैसे उदारता से परमेश्वर को दे सकता हूँ? When you deeply understand what God gave to you. क्या आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? Think about it. How God has worked in and through your life. आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में और आपके जीवन के जरिए कैसे कैसे काम किए Once हैं। upon a time, you were a sinner. एक समय ऐसा था जब आप पापी थे And the Lord intervened in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में आए And He started to transform you. और परमेश्वर आपको बदलने लगे। Today, wherever you're standing, if you look at your past, how dirty, how pitiful it was, but thank God, wow, God has done an amazing thing in your और life. आज के दिन में अगर आप अपने पिछले जीवन की ओर मुड़कर देखते हैं, कैसे थे आप, किस पाप में थे, और आज के समय में अगर आप अपने खुद को देखते हैं तो परमेश्वर ने किस रीति से आपको बदला है। Do you see the goodness of God over your life? क्या आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की भलाई किस रीति से आपके जीवन How में है? many times you have given धोखा to God, but God was so amazing coming back behind you through YouTube worship, through Spotify, if you're listening to a Christian artist, okay? All right, through Spotify, through worship, through putting His presence of God, and somehow try to capture you. हाँ, कितने बार हमने परमेश्वर को धोखा दिया, लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद भी कैसे ना कैसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में भेजता है, भले वो किसी गीत के जरिए ही क्यों ना हो। And I want to tell you, you being in Delhi is a very big thing. देखिए, आप दिल्ली में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। So many people are dying to be in Delhi or in Bombay for XYZ reason there. देखिए, बहुत सारे कारण हैं जो कि लोग चाहते हैं कि मैं मुंबई में क्यों नहीं हूं या फिर मैं दिल्ली में क्यों नहीं But हूं। God has placed you in this city, God has placed you in this particular family, God has placed you in this workplace. Do you think how much God cares for you? देखिए, क्या आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको दिल्ली में रखा है, परमेश्वर ने आपको इस परिवार के साथ रखा है, इस कलीसिया के साथ रखा है, तो कितना परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। Have you ever thought about the salvation that God has given you? देखिए, क्या परमेश्वर ने जो उद्धार आपको दिया है उसके बारे में क्या भी आप सोच के Bible देखते says हैं? in the book of Ephesians, it is by grace
that He has given you the salvation. देखिए परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों की पुस्तक में कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें ये उद्धार मिला God है। has been gracious over your life. देखिए परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहमय रहे हमारे जीवन Salvation में। is a gift that He has given you. जो उद्धार है हमारे पास वो एक तोहफा है परमेश्वर की तरफ And से। think about it, when you pause and think about it, what God has done in your life, I'm so sure money should not come your way and block your देखिए thoughts. रुकिए एक पल सोच के देखिए कि परमेश्वर ने क्या क्या आपके जीवन में किया है, और जब आप इन सब को चीजों को सोच कर देखते हैं तो मेरे ख्याल से जो धन है, जो पैसा है, वो एक रुकावट नहीं बनना How चाहिए। many times, not how many times like me, but then how many times some of you have thought to end your life, you're still alive listening. देखिए बहुत सारे लोगों ने कितने बार सोचा होगा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लेता हूं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप यहाँ पे मौजूद हैं। I wanted to end my life because of maths. मैं जो हूं मैं मैथ्स के वजह से, गणित की वजह से मैं अपना जीवन खत्म करना चाहता He था। wanted to end his life because of a girl. मैं जो हूं मैं एक लड़की की वजह से अपना जीवन खत्म करना चाहता But both था। of us are standing, just kidding, nothing like that, okay? But yes, maths definitely yes. लेकिन जो गणित है वो सचमुच में, I really wanted to end my life. मैं जो हूं मैं मेरे जीवन को खत्म करना But चाहता I था, thank God that He kept me alive. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जीवित How many रखा। times you decided to walk in the middle of the road and you find there's no bus even coming to hit you? और आप कितने बार जो आपने निर्णय लिया होगा कि मैं बीच सड़क में चलूंगा, और आपने मुड़कर देखा होगा तो एक बस भी नहीं आ रही होगी। When Corona was super active, you said, I want to just die, let me just not wear the mask, but still you're alive, people around you have died. देखिए कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने ऐसे निर्णय लिया होगा कि मैं कोरोना आ जाए मैं मर जाऊं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो आलतू फालतू लोग हैं उन सब की मृत्यु हो गई, लेकिन आपकी नहीं हुई। I like this alto falso, okay? Yeah, but you see how God has kept your life safe. लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से आपको संभाल के But रखा the है। moment when we think about giving, it is so difficult even for the money to come out of your pocket. देखिए जब परमेश्वर को देने की बात आती है तो आपका जो पैसा है आपके पॉकेट से बाहर निकलने में भी बहुत संघर्ष करता है। Why should I be a cheerful giver? क्यों मुझे उदारता से देना चाहिए परमेश्वर को? Once you understand how much God loves for you, you would definitely go beyond what is in your heart. जब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, जब आप उस बात को समझ जाएंगे, उस प्रेम को समझ जाएंगे, तो आप अपनी सीमा से बढ़कर परमेश्वर को देंगे। Second point, दूसरी बिंदु, you need to defeat the voice of money. आपको जो है जो पैसे का जो आवाज है उसको हराना है। Do you know that your money can speak to you? क्या आपको पता है कि आपको जो धन है वो आपसे बात कर सकता है? बात किया आपसे? Wow, these are super holy people actually. All right, great. But money talks. देखिए लेकिन जो धन है वो बात करता है, It talks. वो बात करता है। As soon as it's there in your wallet, it can talk through your Paytm and Google Pay. It's like, why don't you buy this? Why don't you do that? Why don't you go for shopping? Look at that person. Money can talk through Instagram, through Amazon, Flipkart, okay, flipping everything. It just keeps talking actually. देखिए जो धन है वो अलग अलग रीति से बात कर सकता है, आपके गूगल पे से, आपके जीपे से, आपके फोन पे से, आपके पेटीएम से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह से वो बात कर सकता है। In my church, I find some of the people are crazy about the shoes. देखिए हम मेरे कलीसिया में कुछ लोग हैं जो शूज के पीछे पागल है। And I think some of them, money talks to them through the shoes also. तो मेरे को लगता है कि शू के जरिए भी मेरे ख्याल से पैसा उनसे बात करता है। I mean, like you see somebody else. I'm not a big fan of shoes. मैं जो हूँ मैं शूज के पीछे इतना पागल नहीं हूँ। All right, but then the big fans of shoes, they look at, oh, यार तूने ये कहाँ से खरीदा? And the next moment is, yeah. You see, money has mouth; it can talk. देखिए जो धन है उसके पास मुंह है और वो बोल सकता है। In the book of Matthew chapter 21, it says, Matthew chapter 6 verse 21 says, और मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 21वां वचन इस it प्रकार says, कहता है, wherever your treasure is, your heart is. और जहाँ पे Treasure, हिंदी में treasure, धन। बहुत धन आपके पास, इसलिए वचन जोर से बोलो। Okay, all right. Where your treasure is, your heart is. जहाँ पे आपका धन है वहाँ पे आपका मन भी It is होगा। so true. ये सच बात है। It is so true. Where your treasure is, 6:21. Where your treasure is, there your heart is. जहाँ पे आपका धन, आपका खजाना होगा, वहीं पे आपका मन भी लगा रहेगा। I've seen people who are always constantly looking at their mobile banking account to check how much balance is there. I don't understand. Like you see it once, great. But how can you see 10 times in one day? और जो है मैं कुछ लोगों को देखता हूँ वो जो है अपने अकाउंट को जो है कितना बैलेंस बचा है, कितना पैसा बचा है, पूरे दिन वो 10 बार देखते रहते हैं। एक बार देखते हैं समझ में आता है, लेकिन पूरे दिन आप कैसे देखते Some रह of them, they सकते have हो? placed their money to the left, right, center. They keep going, checking 1,000 times. It's like where your treasure is, your heart is. तो
और लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या है, कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है, और जो है जहाँ पे आपका धन है वहीं पे आपका मन भी लगा Please रहेगा। understand there's nothing wrong about investing your money, देखिए, इन्वेस्ट करने में कुछ गलत बात नहीं है, but then don't make it your treasure. लेकिन उसको अपना अपना ट्रेजर मत बना That लीजिए you're so lost that even when you're praying for your money, Lord bless my money, keep कि- it safe. The money is my refuge, my money is my fuel. No, okay. It should not brainwash you. कि आप इतना खो जाएं उस धन में कि जब आप प्रार्थना करें तो आप अपने धन के लिए भी प्रार्थना करने लगे कि हाँ परमेश्वर आप मेरे पैसे को आशीष कीजिए, उसको आप और भी बढ़ा दीजिए, ऐसा ऐसा कुछ। One of the best way to defeat the voice of money is to take it out and give it. सबसे उत्तम चीज जो आप कर सकते हैं, हरा सकते हैं उस धन के आवाज को, वो ये है कि आप लेकर आप परमेश्वर को दे सकते If your हैं। money is talking to me, slap it and put it in the offering box. अगर आपका धन आपसे बात करता है, थप्पड़ मारिए और उसको धन पेटी में डाल If दीजिए। your money is ruling your life, just make sure that you slap and put it in the offering box. अगर जो Very धन है simple. वो आपको रूल कर रहा है तो आप उसको थप्पड़ मारिए और फिर उसको दशवान से भेंट में डाल दीजिए। I'm telling you, once you see, I don't know, okay, how many of you struggle with giving, but let me tell you, once you start giving, it is such a joyous thing actually. देखिए, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जो है परमेश्वर को देने में संघर्ष करते हैं, लेकिन जब आप देना शुरू करेंगे तो परमेश्वर उसको आशीष करेगा। Some of you, as students, college students, you might say, Danny, once I start earning, I will give it. No, you will never do that, trust me. तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि डैनी भाई मैं तो अभी बस स्टूडेंट ही हूँ या फिर कॉलेज में हूँ, तो जब मैं कमाने लगूंगा या लगूंगी तब मैं परमेश्वर को दूंगी। मेरी बात में विश्वास करिए, जब आप कमाने लगेंगे आप नहीं दे पाएंगे। Start with now, अभी से शुरू कीजिए, whatever you have, जो भी है आपके the पास, pocket money that you receive. जो आपको पॉकेट मनी आपको मिलता All है। right, or when you go for summer vacation, I mean, I love summer vacations when I was a kid. मुझे गर्मियों की छुट्टियां मुझे बहुत पसंद थी जब मैं Because छोटा I था। know when I used to go to my grandparents' house, I loved their love and care, but the best moment was when I was leaving अच्छा, home. जो मुझे बहुत ही पसंद है जब मैं गर्मियों की छुट्टी में जब मैं मेरे नाना नानी के घर जाता था, But the और best moment, सबसे उत्तम समय ये होता था जब मैं वहां से वापस अपने घर को आता था। they will be crying. वो रो रहे होते थे I'm like, why are they not giving me money? और मैं सोचता कि ये मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, I'm thinking like, why are they not giving me money और मैं actually? सोचता कि मेरे को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। As a kid, not now, okay? All right, as a बचपन की kid. बात है ये। And then they will give me, and then I say, oh my goodness, grandma, I'm going to miss you, all right? जैसे मुझे पैसे, फिर मैं कहता था कि हाँ मैं आपको मिस करूंगा। Man, money talks, I tell you. देखिए, जो धन है वो बात करता है। I remember when I was working in a company, और मुझे पता है कि मैं कंपनी के लिए जब काम कर रहा था and the Lord spoke to me very clearly. और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही साफ रीति से बात किया मुझसे, He said, do you really love me? और परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम सचमुच में मुझसे प्रेम करते First thing हो। when he puts a question like that, I think, how much money do I have in my bank balance? और जब परमेश्वर आपसे कुछ सवाल ऐसे करता है तो सबसे पहले सोच लीजिए कि कितना कितना अकाउंट बैलेंस में है Not करके। for you, it was for me मेरे actually. लिए था ये, All right, and I remember it was my first job. और ये पहली नौकरी थी मेरी, And I was somehow able to save some 7,000 to 8,000 rupees और- after 1 year. और एक साल के बाद जो है ऐसे तैसे करके मैं 7 से 8 हज़ार तक कुछ जोड़ पाया था। And the Lord told me very clearly, do you love me? और परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते At हो। that time, my salary account was in SBI. I'm looking at, Lord, love me or love SBI? What are you talking about? I'm driving in Gurgaon road in my bike, high speed. If you say I don't love you, I can feel my road accident right before me. So he's not a God like that. But then, you know, this question was coming back and forth. तो देखिए, मैं जो हूँ, मैं गुड़गांव के रोड में था, बाइक में जा रहा था, तो ये जो सवाल है मेरे अंदर बार बार आ रहा था। And I said, Lord, yes, I love you. और फिर मैंने यीशु मसीह से कहा कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे And प्रेम he करता said, हूँ। just give it, whatever you have. और परमेश्वर ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास है उसको दे दो। But I said, give to whom? और मैंने पूछा कि दे दूं किसको, And he said, just be ready, give it. और परमेश्वर ने कहा कि तुम बस तैयार हो और फिर दे देना। And the very next moment, और अगले ही क्षण I meet a friend और मैं एक दोस्त से मिलता हूँ, and he shares his need. और फिर वो जो है अपनी जरूरतें मुझसे बांटता है वो। And it was so clear that I had to give that thing to him. और बहुत ही सरल था, साफ था कि मुझे जो मेरे पास जो था वो उसको देना था मुझको। You never know how God works in and through your life. और देखिए, आपको नहीं पता कि किस रीति से परमेश्वर आपके जरिए आपके जीवन में काम कर If सकता God है। has placed you in a workplace, it's not just for you to earn and earn and earn, but then how you can use your money to be a blessing to somebody around you for the ministry, so that the ministry can expand its ministry. देखिए, अगर परमेश्वर ने आपको एक जगह पे नौकरी पे रखा है तो इसका मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि आप जाते हैं, कमाते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए भी रखा है कि
आपके आर्थिक आपके उस पैसे से आपके उस तनख्वाह से लोग भी दूसरे लोग भी आशीषित हों। You know, in Deuteronomy chapter 8, verse 18, it says, "Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 और उसका 18वां वचन इस प्रकार कहता है, Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. देखिए परमेश्वर को याद रखें जो आपको मदद करता है, जो आपको सहायता करता है धन Bible is- उत्पन्न करने The में। Bible is very clear. It is God who gives you the ability to produce wealth. देखिए बाइबल जो है बहुत ही सरल रीति से साफ रीति से बताती है कि परमेश्वर ही तुम्हारी सहायता करते हैं तुम्हें धन जो है कमाने में। And when it comes to giving, we have thousands of doubts coming in our mind. और जब देने की बात आती है परमेश्वर को तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल और शक पैदा होते हैं। I want to end with this one statement. देखिए एक बात को बोलकर मैं खत्म करना The चाहूंगा, larger our heart is, जितना बड़ा हमारा हृदय होगा the larger the picture we paint of God's character. तो उतना बड़ा ही हम परमेश्वर के कैरेक्टर को हम दिखा पाएंगे The लोगों larger को। your heart is, जितना बड़ा आपका हृदय होगा, मन the होगा, larger you paint the character of God. और उतना बड़ा ही आप परमेश्वर को दिखला We पाएंगे। know that God lives inside us. आपको पता है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास The करता है। larger you give, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को देते the हैं larger you're showing the picture of God in your life. तो उतना ही ज्यादा परमेश्वर को आप दिखा रहे हैं अपने जीवन So में। I want to cheer up, okay, encourage each and everybody seated here. When it comes to giving, don't think, what will happen? Will I die? Will my world end? Nothing will happen. You will live your life. तो जितने भी जन यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब देने की बात आती है तो इतना सोचिए मत कि क्या होगा, ये देने के बाद क्या दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, दुनिया खत्म नहीं होगी, बस दे दीजिए And also the परमेश्वर को। blessing is when you are a cheerful giver. लेकिन आशीष तब आएगी जब आप उत्साह के साथ, खुशी के साथ When परमेश्वर you're को देंगे। cribbing and crying, it's like, God, it's a punishment. You know, I would say just hold it, and rethink and give it again. अगर आप रोते रोते देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर यही है मेरे पास, मैं रोते रोते दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो उसको मत दीजिए, आप अपने पास ही रखिए उसको, रुक Yeah, जाइए। I mean, I'm telling you, if you want a financial breakthrough, be a cheerful giver. अगर आप अपने आर्थिक जीवन में एक ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को देना शुरू कीजिए। Everybody needs a breakthrough here. देखिए सबको अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू की Honestly, जरूरत है। everybody needs a financial breakthrough. देखिए एक आर्थिक ब्रेक थ्रू की जरूरत है Nobody सबको। wants to be in that same lifestyle, but you all want to improve ahead in life. देखिए जिस जीवन स्तर पे आप हैं उसी स्तर पे आपको रहना नहीं है, लेकिन सबको ऊपर आना है, सबको बढ़ना है। The world will give you different advices to invest here and there, but I would tell you just invest also top priority in God's kingdom. देखिए जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो आपको बोलेंगे कि इधर इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो, लेकिन हाँ करो, लेकिन सबसे ऊपर आप परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू My करो। teaching is very simple. First, you take out your tithe, your offering, and the rest you do your calculation. देखिए मेरा मैं बहुत ही सरल रीति से प्रचार करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि प्रचार करता हूँ. Okay, all right. Oh, okay, teaching. हाँ. जो आपका जो भी तनख्वाह आता है परमेश्वर के लिए पहले निकाल दीजिए और उसके बाद जो भी करना है आप कीजिए। And especially young people, as most of you are, start budgeting everything that you have. और जवान लोग हैं आप, तो जो भी आप करते हैं उसमें थोड़ा सीमित हो जाइए। Budget. Oh, सीमित हो जाइए. Okay, all right, good. Yeah. God loves a. Turn to somebody and say, और God किसी की loves a तरफ cheerful. मुड़कर कहिए, परमेश्वर उदारता से देने वालों से प्रेम रखता है। Yeah, now I don't want you to go back home and take all the money in your locker and bring it here और मैं नहीं without चाहता कि your parents' knowledge. वापस आप घर जाकर जितना भी पैसा आपके लॉकर में वो सब उठा के यहाँ पे लेकर आ जाइए, ये नहीं चाहता मैं। But everybody be a cheerful giver. लेकिन जितने भी जन यहाँ पे मौजूद है सब लोग उदारता से देना सीखें। Everybody understood? क्या आप समझ गए हैं Why should I be a cheerful giver? मुझे क्यों उदारता से देना चाहिए? Number one, understand how much God loves you, how much God cares for you. क्यों देना चाहिए? क्योंकि पहली बात को समझिए कि परमेश्वर आपसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। Second, why should I give it? और दूसरा सवाल ये कि मुझे क्यों देना चाहिए? Because I want to shut the voice of money. मुझे इसलिए देना है ताकि मैं जो हूं धन की आवाज को बंद कर पाऊं। Amen. Shall we just close our eyes and pray? क्या हम इस समय में अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना Thank you, करें? Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, this evening we pray, Lord, इस शाम के समय में हम प्रार्थना करते हैं, that help us, Lord, to be a cheerful giver. पिता हमारी सहायता करे कि हम उदारता से दे पाए। Let not money rule us, but help us, Lord, to rule the money. परमेश्वर होने ना पाए कि जो पैसा है, जो धन है, वो हमारे ऊपर राज्य करे। Let not money talk to us, Lord, but we want to talk to our money and
and make sure that it turns out to be a blessing to people around us. पिता परमेश्वर होने ना पाए कि जो धन है वो हमसे बात करे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जो धन है वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण Lord, ठहरे। whenever we take a pledge to give offering, Lord, let no voices come and distract us, Lord. पिता परमेश्वर, जब देने की बात आती है आपको परमेश्वर, तो हम चाहते हैं कोई भी दूसरी आवाज हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे Lord, परमेश्वर। no matter how bad our condition may be, Lord, help us, Lord, to be faithful in giving, Lord. परमेश्वर, जितनी भी बुरी परिस्थिति हमारी क्यों ना हो परमेश्वर, हमारी सहायता करे कि हम आपको दे सके। Let our giving increase day by day, week by week, Lord. पिता परमेश्वर, प्रतिदिन प्रति वीक हर हफ्ते पिता परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा जो देना है वो बढ़े यीशु Lord, मसीह के नाम let से। our giving be a blessing to your kingdom, पिता Lord. परमेश्वर, हमारा जो देना है पिता वो आपके राज्य में एक आशीष का कारण ठहरने पाए। Thank you, Lord, for you being protector over our life, Lord. पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में हमें सुरक्षित रखने के लिए There धन्यवाद। are so many people with so much of medical expenses, but you have been gracious over our life, पिता Lord. परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जिनके अस्पताल के खर्चे होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपने अनुग्रह दिखाकर हमें संभाले रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद We देते हैं। thank you for such favor over our पिता, life. ऐसे एक अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते And हैं। we pray this evening, Lord, इस शाम के समय हम प्रार्थना करते let हैं, each one, Lord, experience the fruit that they are going to sow in your kingdom, पिता Lord. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो बीज वो आपके राज्य में बोने वाले हैं, We give you glory, we give you honor. हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा In देते Jesus' हैं। mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना Amen, करते हैं। amen, amen.